Good morning students, this side Sonu Gupta, your chemistry teacher. I hope you all are well. Students, in the last class we studied about ideal and non-ideal solution and types of non-ideal solution, which are positive deviated solution and negatively deviated solution. And we also studied about azeotropic mixtures. So now we begin our new topic, colligative properties. This one is very important and very interesting topic also. So let's start. Colligative properties. The properties of the solution which depends only on the number of solute particles but not on the nature of solute are called as colligative properties. मतलब किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज जो केवल और केवल नंबर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती हैं. किस पर डिपेंड करती हैं? ओनली नंबर ऑफ सॉल्यूट पर, बट नेचर ऑफ सॉल्यूट पर वो डिपेंड नहीं करती हैं. वो प्रॉपर्टीज़ कहलाई जाती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़. आई रिपीट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, not on the nature of solute particles. Colligative properties are of four types. Number 1, relative lowering of vapor pressure. Number 2, elevation in boiling point. Number 3, depression in freezing point. And number 4 is osmotic pressure. We will discuss in detail one by one on each property. Now we are going to start with first property, relative lowering in vapor pressure. Students, one point I want to tell you कि relative lowering of vapor pressure को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. आपको याद होगा हमने रॉल्स लॉ पढ़ा है एंड रॉल्स लॉ में जो सेकंड पार्ट है दैट मीन्स रॉल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. अंडर दिस टॉपिक वी हैव ऑलरेडी कवर्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और इसके साथ हमने determination of molecular mass of non-volatile solute by the help of Raoult's law or relative lowering of vapor pressure पढ़ लिया था. So now we are going to repeat this topic under the headline relative lowering in vapor pressure. Its definition says relative lowering in vapor pressure of a solution containing a non-volatile solute is equal to the mole fraction of solute at a given temperature. It means किसी भी सॉल्यूशन में जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो, उस सॉल्यूशन का जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा वो बराबर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के. आई रिपीट, कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला हो उस सॉल्यूशन का रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बराबर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के किसी भी फिक्स टेम्परेचर पर. नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव दिस लॉ और प्रॉपर्टी विद द हेल्प ऑफ डेरिवेशन. लेट अस कंसिडर अ बाइनरी सॉल्यूशन इन विच A is the solvent and B is the solute, and A is volatile and B is non-volatile. as हमने definition में mention किया है solute non-volatile होना चाहिए. So here A is a solvent and B is the solute. Now we are going to mix both of these A and B and it will make a solution AB. Students, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ए इज P नॉट ए. सॉल्वेंट ए का वेपर प्रेशर होगा P नॉट ए, नॉट बिकॉज इट इज इन प्योर स्टेट. नाउ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट B, as it is non-volatile, so it do not have any vapor pressure. Now the vapor pressure of solution is PS. Okay. Now इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है A एंड B, तो दोनों का पार्शियल वेपर प्रेशर भी होगा. यहाँ पर प्योर वेपर प्रेशर था, यहाँ पर पार्शियल वेपर प्रेशर. नाउ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज PA. हम यहाँ P नॉट ए इसलिए नहीं लिखेंगे बिकॉज P नॉट ए प्योर स्टेट में होता है. ना हेयर इट इज अ मिक्सचर, सो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा PA फॉर कंपोनेंट A एंड
partial vapor pressure for component B is equals to 0 as we know that B is a non-volatile solute. अभी non-volatile है तो ये evaporate भी नहीं होगा and vapor pressure create नहीं करेगा. So partial vapor pressure of B is 0 and A is PA. Now student, one point that we have to note here is PS is equals to PA. Okay. So ये इसलिए क्योंकि जो भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो अल्टीमेटली केवल और केवल एक ही कंपोनेंट पर डिपेंड कर रहा है जो है PA. सो यहाँ पर जो भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्रिएट होगा वो बराबर होगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A के, एज B एक नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है. सो PS इज इक्वल्स टू PA. दिस पॉइंट वी हैव टू नोट and we can prove it here. Students, we know that total vapor pressure of solution is equals to the sum of partial vapor pressure of the component A and B. Now we know that PB, that means partial vapor pressure of component B is equals to 0 as B is a non-volatile solute. So PA plus 0 is equals to PS. So ultimately PS is equals to PA. Okay. Now according to Rolle's law, we know that PA is directly proportional to XA. Rolle's law बोलता है कि किसी भी कंपोनेंट का सॉल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है. So PA is directly proportional to XA and we know that this PA is equals to PS. Okay, so PA or PS is directly proportional to XA. We are going to solve this equation. जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव होगा एंड यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा जो कि होगा P नॉट A. ठीक है स्टूडेंट्स. सो P नॉट ए इज इक्वल्स टू K, क्योंकि K क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू P नॉट A है, तो यहाँ पर हमने P नॉट A लिखा है. सो इक्वेशन होगी PA इज इक्वल्स टू P नॉट A इंटू XA. एज वी नो दैट PS इज इक्वल्स टू PA, सो हम और इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि PS इज इक्वल्स टू P नॉट A इंटू XA. नाउ वी आर गोइंग टू रीअरेंज दिस रॉल्स लॉ. नाउ हम PS इज इक्वल्स टू PA इंटू XA को कंसिडर करेंगे और इसको हम रीअरेंज करेंगे. स्टूडेंट्स, वी नो दैट XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1. एज हम पहले वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 के बराबर होता है. सो XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1 हेयर एंड XA की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये होगा 1 माइनस XB. नाउ वी आर गोइंग टू पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1. ओके, सो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर. सो PS किसके बराबर होगा, PS P नॉट A इंटू XA की वैल्यू क्या निकली है 1 माइनस XB. ना इसको सॉल्व करते हैं. PS इज इक्वल्स टू P नॉट A इंटू 1, दैट मीन्स P नॉट A माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा P नॉट A इंटू XB. नाउ P नॉट A इंटू XB को हम इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस से प्लस में चेंज P नॉट A इंटू XB एंड ये होगा P नॉट A और PS को हम इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव में आ जाएगा, ये हो जाएगा P. नाउ वी आर गोइंग टू शिफ्ट P नॉट A in the denominator. So ultimately XB is equals to P नॉट A minus PS upon P नॉट A. Students, यहाँ XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. ओके, जो हमने B डाला था उसका मोल फ्रैक्शन है. P नॉट A माइनस PS, दैट मीन्स चेंज इन वेपर प्रेशर, इसीलिए हमने इसको डेल P लिखा है. ठीक है, चेंज इन वेपर प्रेशर और P नॉट A माइनस PS is known as lowering in vapor pressure, and the complete term P naught A minus PS upon P naught A is called as relative lowering in vapor pressure. So students, यहाँ हमने देखा कि हम जो डेरिवेशन कर रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का,
इसमें से हम किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं। So relative lowering of vapor pressure is helpful in determining the mole fraction of non-volatile solute. Students, this is the complete derivation of relative lowering in vapor pressure. As its definition says that relative lowering of vapor pressure of solution containing a non-volatile solute is equals to the mole fraction of solute at a given temperature. तो यहाँ पर इस definition को हमने यहाँ पर proof कर लिया है। नाउ यहाँ से ये क्लियर होता है कि जो भी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है उससे हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं। यानी एक चीज़ और जो हम इससे डिटरमाइन कर सकते हैं वो है उसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास। अभी हमने एक्स भी डिटरमाइन किया था, अब हम उसका मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन कर सकते हैं। एंड ये आपको तभी करना है जब एग्जाम में ये पूछा जाएगा। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट विद द हेल्प ऑफ रॉल्स लॉ। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बाय रॉल्स लॉ और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दोनों एक ही हैं। हियर वी नो दैट एक्स बी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए minus PS upon P naught A. We know that XB, that means mole fraction of B, is equals to moles of B upon moles of A and B दोनों का sum, that means NB upon में Na plus NB। That XB, that means mole fraction of B is equals to moles of B upon में moles of A and B। ये हम मोल फ्रैक्शन में समझ चुके हैं। ओके, नाउ NB क्या है? NB मोल्स हैं B के, एंड मोल्स क्या होते हैं? मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। तो अगर B की बात कर रहे हैं तो गिवन मास ऑफ B अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ B। सो गिवन मास इज रिप्रेजेंटेड बाय W एंड इट इज फॉर B, so B, and molecular mass is represented by MB। ठीक है, so given mass WB upon में molecular mass MB। same for Na means यहाँ पर क्या होगा? given mass of A upon में molecular mass of A, so it is equals to WA upon में MA। now we are going to put these values of Na and NB in this formula। so P नॉट ए माइनस पी एस अपॉन में P नॉट ए इज इक्वल्स टू एक्स बी, एंड एक्स बी के वैल्यूज ये हैं। ठीक है, अल्टीमेटली ये हैं, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे एक्स बी, दैट मीन्स एन बी की वैल्यू डालेंगे हम डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी अपॉन में एन ए प्लस एम बी। तो ये हो जाएगा डब्ल्यू ए अपॉन में एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी। और ये क्या है? ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, जो है पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट ए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वन थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड दैट जो भी एन ए है वो बहुत ज़्यादा है एन बी के कंपैरिजन में। ओके, सो हम बोल सकते हैं एन बी बहुत कम है। एन बी क्या है? सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मोल्स हैं। ठीक है, सो एन बी जो है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मोल्स जो हैं वो एन ए, दैट मीन्स सॉल्वेंट के कंपैरिजन में बहुत कम डाले गए हैं। सो दे आर जस्ट अबाउट नेग्लिजिबल इन सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन में ये कैसे हैं? नेग्लिजिबल है, क्योंकि ये बहुत कम है एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट। तो ये जो एन ए प्लस एन बी की जब बात करी जाएगी तब यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे? नेग्लिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हम इनको यहाँ पर नेग्लिजिबल कंसिडर करेंगे। सो पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट ए, दैट मीन्स रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यहाँ पे किसके बराबर होगी? ओनली डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी एंड अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन में एम ए, क्योंकि डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी यहाँ पर जो वैल्यूज थी हमने उसको नेग्लिजिबल कंसिडर कर लिया। नाउ सॉल्व करते हैं इसको। सो डब्ल्यू बी
अपॉन एम बी इंटू एम ए ऊपर शिफ्ट होगा, एम ए अपॉन में डब्लू ए। लुक देयर इज एम बी क्या है, मॉलिक्यूलर मास है बी का, और यही हमको डिटरमाइन करना था, तो इसको हम यहाँ शिफ्ट कर लेंगे एंड एम बी की वैल्यू डिटरमाइन कर लेंगे। सो एम बी की वैल्यू यहाँ पर निकल आएगी जब हम पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट ए को यहाँ शिफ्ट कर देंगे। एंड फाइनली एम बी की वैल्यू होगी एम बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू पी नॉट ए माइनस पी एस, ऊपर क्या होगा एम ए इंटू पी नॉट ए। सो यहाँ से ये कंप्लीट वैल्यू हम एम बी की डिटरमाइन कर सकते हैं। एंड यही हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे कि डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, बी की बात कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ। सो इस फॉर्मूले से हम वो चीज़ डिटरमाइन कर सकते हैं। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द कंप्लीट नोट्स ऑफ relative lowering of vapor pressure and determination of molecular mass of non-volatile solute. I will send these notes via PDF. I hope students आप सबको समझ आया होगा relative lowering of vapor pressure. Thank you students.